ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ। ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ BA BSc BCA, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਸ ਚੈਪਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟਸ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਏ, डिनोमिनेटर 'ਚ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਏ, तो 0/0 बन गया। इन्फिनिटी आ गया न्यूमिनेटर 'ਚ, डिनोमिनेटर 'ਚ भी इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप्स पढ़ लेने हैं, क्योंकि लिमिट निकालते कुछ इन फॉर्म्स आ गया जिन्होंने असी नहीं निकाल पाए। वो केड़ियां फॉर्म सीगियां? 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0 एंड 1 पावर इन्फिनिटी। इस तरह ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮਸ। ਹੁਣ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਲ ਹੋਪੀਟਲ ਰੂਲ। ਐਲ ਹੋਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਫ fx ਐਂਡ gx, ਕੋਈ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰ फंक्शंस। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਸੱਚ ਦੈਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ a ਤੇ fx ਦੀ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ a ਤੇ gx ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ 0। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ एग्जिस्ट करने चाहिए, both exist and ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ gx ਦਾ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ a ਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਫॉर ऑल ਨੇਬਰਹੁੱਡ। a ਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਮਤਲਬ a ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਆਏਗਾ। ਸੋ a ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ, a ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ, ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਲਟਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਥੋੜਾ 0 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਬਟ ਸਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ fx ਤੇ gx ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ, gx ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ a ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਨਿਕਾਲੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ x ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ gx ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ x ਐਟ ਵੈਨ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ a, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏ? ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਨਸਰ ਇਫ ਦੈਨ लिमिट x अप्रोचिस टू a, जो आंसर साडा लिमिट दा आना सी fx ओवर gx लिमिट दा एट a, वो सेम होएगा लिमिट x अप्रोचिस टू a ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ओवर डेरिवेटिव ऑफ g फंक्शन। कि चाहे तुसी fx ओवर gx फंक्शन दी लिमिट निकालो a ते या तुसी लिमिट निकालो फंक्शन दा डेरिवेटिव f ओवर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ gx किस पॉइंट ते a ते, दोवां दा आंसर सेम होएगा। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਲ ਹੋਪੀਟਲ ਰੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्ट फाइनाइटली या इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे डेरिवेटिव दा डिवाइड करके, fx ਤੇ gx ਨੂੰ डिवाइड करके लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए इनफाइनाइटली या फाइनाइटली। क्लीयर? ਇਹ ਸੀ ਐਲ ਹੋਪੀਟਲ ਰੂਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ a ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ फाइंड करने ਲਈ,
ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਾइंड ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲ ਹੋਪਿਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਦ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਐਟ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ e ਪਾਵਰ x ਮਾਈਨਸ e ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ x ਓਵਰ ਸਾइन x। ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ sin x ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਮਿਟ 0 ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 sin x ਓਵਰ x, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, एल हॉपिटल रूल लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखो, अगर डायरेक्ट 0 फिल करो तो e पावर 0 माइनस e पावर 0 ओवर साइन 0 0, 1 माइनस 1 ओवर 0, एक ही बन गया, 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। जे 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, हुन यूज करो एल हॉपिटल रूल, यूज एल हॉपिटल रूल। अगर वो रूल लगाया तो वो की कह रहा है कि तुसी न्यूमीनेटर का डेरीवेटिव करो। न्यूमीनेटर की है e पावर x का डेरीवेटिव e पावर x, नाल कौन है e पावर नेगेटिव x, ओदा डेरीवेटिव करो, ये प्लस तो हो जाएगा तो नेगेटिव x ओवर साइन x का डेरीवेटिव cos x। हुन लिमिट निकालो यदि 0 ते e पावर 0 प्लस e पावर 0 cos ऑफ 0, e पावर 0 हो गया 1, e पावर 0 हो गया 1 ओवर cos 0 हो गया 1, तो 2 ओवर 1, ਇਹਦਾ मतलब 2। तो क्योंकि फंक्शन ਜਿਹੜਾ sin x ਤੇ e ਪਾਵਰ x ਦੋਵੇਂ फंक्शन कंटिन्यूस है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एल हॉपिटल रूल ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। एल हॉपिटल रूल ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2। ਜੇ ਅਸੀਂ एल हॉपिटल रूल नहीं ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 0 ਓਵਰ 0 ਵਾਲੀ। क्लियर, चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल। इवैल्यूएट करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस साइन x ओवर tan x। हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सेम फॉर्मूला एक ਤੁਸੀਂ याद रखना है, जो साइन ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ है 0 ਤੇ ਉਹੀ tan ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ है। tan x ओवर x, x अप्रोचेस टू 0 ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ 1। तो देखो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, अगर ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट ਇਹਦੇ ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 0 ओवर 0 बन गया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ रूल लगाने ਦੀ यूज करो, ਇਹ रूल लगाने ਦੀ कोशिश करो, क्योंकि tan x हैगा। मैं की किया, क्योंकि इत्थे क्यूब है, कल्ला x नहीं है, तो मैनू नीचे डिवाइड विच भी क्यूब ही चाहिए, तो मैं इनू दोबारा लिख के क्यूब नाल कर रही हूँ मल्टीप्लाई, तो क्यूब नाल ही कर दो तुसी डिवाइड, x दी क्यूब नाल डिवाइड, x क्यूब नाल मल्टीप्लाई। जिहड़ा डिवाइड किया उन्होंने एक ब्रैकेट च कर लो, बाकी सारा एज इट इज रहन दो। ठीक है, हुण जो अगर तुसी लिमिट लगाने की कोशिश करोगे तो लिमिट की भी डेफिनेशन तो असी दो चीज़ां अगर मल्टीप्लाई हो रही तो लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, अगर उन्हों की लिमिट एग्जिस्ट करे। तो हुण अगर ये ते लिमिट लग जाए तो यदा आंसर कितना हो जाना है इस फॉर्मूले तो 1। तो की बच गया तुहाडे को, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस साइन x ओवर, ये क्यूब है ना, हाँ, तो x क्यूब इना बच गया। हुण अगर 0 रख दो तो की बनेगा 0 माइनस 0 ओवर 0, एक ही बन गया 0 ओवर 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। हुण इदा करो, ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव, न्यूमीनेटर च भी डिनोमीनेटर च भी, क्योंकि एल हॉपिटल रूल असी लगा सकते हैं, यूज एल हॉपिटल रूल। तो तुहाडे को बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x का डेरिवेटिव 1, साइन x का डेरिवेटिव cos x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x किया। अगर हुन रख दो 0 तो की आएगा 1 माइनस cos 0 इज 1, नीचे 0, फिर 0 बाय 0 बन गया। दोबारा एल हॉपिटल रूल असी लगा सकते हैं, यूज एल हॉपिटल रूल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन x, 3 2 जा 6x। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करो 1/6 रहन दो, बाकी की बचिया साइन x ओवर x लिख सकते हो। तो ਇਹਦੀ लिमिट 0 ਤੇ जाए तो कितना आंसर होंदा 1, ਇਹਦਾ आंसर हो गया 1, 1/6 कांस्टेंट है, तो आंसर कितना आ गया 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1, वो कितना हो गया 1/6, 1/6 ਤੁਹਾਡਾ आंसर हो गया। फंक्शन की लिमिट का आंसर कितना आया 1/6, डायरेक्टली नहीं आया। ऐसी एक क्वेश्चन दे विच एक तो ज़्यादा वारी एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बारी ही लगाना है, एक तो ज़्यादा वारी लगा दो। ठीक है, तो ये असी लिमिट निकाल चुके हैं फंक्शन की।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 3/2 ਆਏਗੀ। ਲਿਮਿਟ ਆਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 3/2 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ लिमिट x approaches to 0 x e power x minus log of 1 plus x over x square। ਹੁਣ अगर डायरेक्ट 0 रख दोगे तो की बनेगा 0 minus 0 over 0। ਇਹਦਾ मतलब 0/0 फॉर्म बन गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। की करोगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ, e ਪਾਵਰ x ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ log ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। e ਪਾਵਰ x ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 plus x x square by 2 factorial x cube by 3 factorial and so on। नेक्स्ट कौन है, log of 1 plus x, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x, अल्टरनेटिव साइन चलते हैं x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x 4/4 and so on। देखो लगा दो इतने x ऐंदा ही रहन दो, e पावर x की एक्सपेंशन ज़्यादा लिखने की लोड़ नहीं है, इन्ना ही बहुत है। माइनस log of 1 plus x की एक्सपेंशन x minus x square by 2 x cube by 3 and so on over x square। कितना आ गया x square। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ x, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ x square, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ x cube by 2 factorial and so on। इधर ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ -x plus x square by 2 plus x cube over 3 माइनस आएगा ना, साइन चेंज हो गए तो इतने माइनस आएगा, अगे वाली टर्म्स आ जाएंगी जो भी आए। डिनोमीनेटर च कुछ चेंज नहीं होया, उन्होंने एज इट इज़ रहन दो, इट इज़ एक्स स्क्वेयर। हुण देखो जो तुसी फस्ट ब्रैकेट ओपन कर दो, पहला एक्स है इत्थे माइनस एक्स है तो कैंसल हो गया, फिर एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स तुसी लिखो जिन्ना ते एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर इत्थे भी हैगा, एक्स स्क्वेयर इत्थे भी हैगा, टर्म क्या आई 1 + 1/2 नाल आ गया एक्स स्क्वेयर। अगे की है एक्स क्यूब वाली टर्म बाहर लिखा लो, एक्स क्यूब अगर ये एक्स क्यूब बाहर कट दो तो तुहाडे को 1/2 फैक्टोरियल बचता है, ये तो एक्स क्यूब बाहर निकाल दो तो -1/3 बचता है, 3 फैक्टोरियल नहीं है कला 3 है। अगे बहुत सारी अगलियां टर्म्स आ जाएंगियां, नीचे कौन है एक्स स्क्वेयर डिनोमीनेटर च, एक्स स्क्वेयर इत्थे भी हैगा, एक्स स्क्वेयर इत्थे भी हैगा, कैंसल हो जाएगा तो कर दो कैंसल, ये तुहाडे को बन जाएगा 1 + 1/2 एक्स स्क्वेयर नाल एक्स स्क्वेयर कैंसल, चलो कटिया गया, बाकी की बचा 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होंदा है, एक्स क्यूब ते एक्स स्क्वेयर एक कटिया जाना, एक स्क्वेयर कटिया जाना, एक एक्स रह गया, ऐंदा ही अगे जो भी टर्म्स आएंगियां लिख देनियां। डिनोमीनेटर च हुण कुछ नहीं बचिया, लिमिट नूं 0 फिल कर दो, एक्स नूं की फिल करना है 0, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x है ही नहीं तो ये एज इट इज़ रहेगा, दूसरी टर्म च जो भी हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ 0 है तो 1/2 - 1/3 x की जगह 0 आ जाना है। अगलियां टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਦੀ ज़्यादा पावर आ जानी है, 0 मतलब x ਦੀ पावर 2 आनी सी, x ਦੀ पावर 3 आ जानी सी। इनफैक्ट x स्क्वेयर ਨਾਲ कट करन तो बाद भी एक्स स्क्वेयर नाल कट करन तो बाद पावर्स अगे आनियां सी, क्योंकि एक्स स्क्वेयर वाली टर्म असी डायरैक्ट कट करती, हुण एक्स स्क्वेयर वाली कोई टर्म नहीं बची, जो बाकी बचनगियां वो एक्स वाली आई क्योंकि क्यूब दे नाल स्क्वेयर कटिया, फिर एक्स की पावर 4 नाल एक्स स्क्वेयर कटी है, फिर एक्स की पावर 5 नाल एक्स स्क्वेयर कैंसल करांगे, सारियां दे नाल अगे एक्स आ रहा है तो जदों एक्स नूं लिमिट नूं एक्स नूं 0 फिल करोगे सारियां टर्म 0 हो जानियां, तो किहड़ी टर्म बची फस्ट वाली टर्म की है 1 + 1/2 कितना हुंदा है ਉਹਦਾ आंसर 3/2 हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। लिमिट प्रूफ करती असी कि ਇਹਦਾ आंसर 3/2 ही है। किस तरह प्रूफ किया, असी इनू एक्सपेंशन दे नाल प्रूफ किया, तुसी चाहो तो इनू डायरैक्ट सबस्टिट्यूट कर सकते सी, जिस तरह 0/0 फॉर्म बन गई, तुसी न्यूमीनेटर च एल हॉपिटल रूल लगाओ, डिनोमीनेटर च एल हॉपिटल रूल लगाओ,
जे तुहाडे को दोबारा 0/0 बन रही है, दोबारा एलहोपिटल रूल लगा दो, क्योंकि नीचे फाइनाइट है। 2 बारी ही तुसी एलहोपिटल रूल लगा सकते हो। एक बारी लगाओगे नीचे 2x आ जाएगा, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो कला 2 बच जाएगा बस, और तू अगे नहीं जाना, अगे इनफाइनाइट आ जाएगा आंसर, फिर एग्जिस्ट नहीं करनी लिमिट। ਤੇ उस तरीके नाल भी कर सकते सी, क्योंकि एक्सपेंशन दे नाल थोड़ा जल्दी हो गया तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ एक्सपेंशन दे नाल ही सॉल्व कर लिया। क्लियर है? अगे क्वेश्चन करते हैं। ਹੁਣ इस क्वेश्चन च ए ते बी ਦੀ वैल्यू फाइंड ਕਰਨ ਲਈ क्या क्या ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ कि अगर इस फंक्शन ਦੀ लिमिट हैगी है 1, फंक्शन ਦੀ लिमिट 1 है तो दसो ए ते बी ਦੀ वैल्यू की होएगी। हुन लिमिट ते दे रखी है, एदा मतलब एग्जिस्ट तो कर दी है। क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम च रिपीट हो चुका है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होया यूनिवर्सिटी एग्जाम च, जिहदे विच लिमिट दे रखी है कि लिमिट एग्जिस्ट कर दी है, तो जिहड़े कॉन्स्टेंट्स है उन्हां दी वैल्यू निकालनी है। चलो देखो करते हैं स्टार्ट। अगर तुसी डायरैक्ट 0 रख दो तो कितना बनेगा तुहाडे को? डायरैक्ट 0 रखोगे तो देखो 0 टाइम समथिंग इज 0, b इंटू साइन 0 इज 0 ओवर 0, ये तुहाडे को 0/0 फॉर्म बन गई। जदों 0/0 फॉर्म बन गई तो तुसी इहदा की करना है, एल होपिटल रूल लगा देना है। लगाओ एल होपिटल रूल, एल होपिटल रूल जदों लगाओगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इत्थे प्रोडक्ट रूल नाल डेरिवेटिव करोगे, एक्स नू एज इट इज रहन दो, जिहड़ी ब्रैकेट च टर्म है उहदा डेरिवेटिव करो। ए कॉस है तो नेगेटिव नहीं लगेगा, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्रोडक्ट रूल दे नाल 1 + a कॉस हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, माइनस b एज इट इज साइन हाइपरबोलिक द डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स। डिनोमिनेटर च कौन है? एक्स क्यूब द डेरिवेटिव 3x²। हुण इहदे च लिमिट रख के देखो, 0 ए वाली टर्म 0 बन जानी है, ए 1 बन जाएगी तो ए 1 बन जानी है, तो 1 - 1 0/0, ये दोबारा 0/0 फॉर्म बन रही है। की बन रही है? 0/0 फॉर्म। लिमिट चेक कर देंगे, अगर तुम डायरेक्ट ये 0 फिल करो, 0 इंटू ए साइन हाइपरबोलिक 0 प्लस 1 + a कॉस 0 1 हो जाएगा, माइनस b कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे टर्म की आ रही है 0, नीचे 0 रखे तो एग्जिस्ट नहीं करनी, बट उन्हें क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए है। ਇਹਦਾ मतलब न्यूमिनेटर वाली टर्म भी 0 ही होनी चाहिए, क्योंकि नीचे तो 0 बन रही है ना। अगर यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ਅਸੀਂ एल होपिटल रूल लगाने हैं तो ऊपर भी 0, न्यूमिनेटर च भी 0 आना चाहिए, डिनोमिनेटर च भी 0 आना चाहिए। अगर तुसी न्यूमिनेटर ਨੂੰ सॉल्व करते हो तो ਤੁਹਾਡੇ को बन रहा है 1 + a - b ओवर 0। इनू न्यूमिनेटर ਨੂੰ भी 0 ही होना पएगा, ता 0/0 फॉर्म बनेगी। तो न्यूमिनेटर 0 हो गया तो की होएगा? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया कि ਤੁਹਾਡੇ को ਜਿਹੜੀ टर्म है एक कंडीशन आ चुकी है। इनू ਜਾਂ तो लिख लो b = 1 + a या 1 + a = b, मतलब एक कंडीशन आ गई। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 0/0 फॉर्म बनने तो बाद एल होपिटल दोबारा लगाओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स नू एज इट इज रहने दो, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इत्थे दोबारा। ए साइन दा डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस ए साइन हाइपरबोलिक एज इट इज रहने दो, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ए cos the hyperbolic cos hyperbolic the derivative sin hyperbolic x minus b as it is रहने दो, cos hyperbolic the derivative sin hyperbolic x। डिनोमिनेटर च की है 3x², ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6x। ਜੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ 0 0 0 एंड 0, ये सारी टर्म ਤੁਹਾਡੀ 0 बन रही है। दोबारा देखो जरा, a इंटू 0 + 0 + 0 - 0, यह सारा 0/0 बन गया। फिर
दोबारा एल हॉपिटल रूल लगा दो। ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। तो एल हॉपिटल रूल दोबारा लगा रहे हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज ए cos द डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस a cos hyperbolic x as it is x the derivative 1 plus a as it is sin hyperbolic the derivative cos hyperbolic x, a as it is sin द आ जाएगा cos hyperbolic x, फिर माइनस b sin द आ जाएगा cos hyperbolic x। डिनोमीनेटर च की आएगा 6x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 6 ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਅਗਰ 0 ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਆ ਟਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ डिनोमीनेटर 0 नहीं बन रहा ना। अगर डिनोमीनेटर 0 नहीं बन रहा मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਲਿਮਿਟ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 1 ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 1। ਨਿਕਾਲ ਰੱਖ ਦੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ 0 प्लस a, क्योंकि cos हाइपरबोलिक की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस a माइनस b ओवर 6 इक्वल्स टू 1। ये टर्म बन जाएगी 3a माइनस b ओवर 6 इक्वल्स टू 1। इन्हें तुसी लिख सकते हो 3a माइनस b इक्वल्स टू 6। असी एक कंडीशन पहला भी निकाली सी, वो किहड़ी सी a माइनस b वाली, लिख दो नू a माइनस b इक्वल्स टू -1। बस इनू वेरिएबल्स एक साइड ते रख लिया मैं, a माइनस b इक्वल्स टू -1। बस इनू रीअरेंज ही किया, इक्वेशन वही है, चेक कर सकते हो। दोवां नू सॉल्व कर दो, सबस्टिट्यूशन मैथड लाओ, एलिमिनेशन मैथड लाओ, कुछ भी लगाओ। ये तुहाडे को 2a इक्वल्स टू 7, 2a इक्वल्स टू 7, ਇਹਦਾ मतलब a ਦੀ वैल्यू आ गई 7/2। क्लीयर, a ਦੀ वैल्यू 7/2 जिस तरह ही आई, b ਦੀ की नहीं आएगी। असी ऊपर निकालिया सी जो b है वो की है 1 + a, ते ਇਹਦੇ ਚ रखो वैल्यू 1 + a कितना 7/2, करोगे तो कितना आ जाएगा 9/2 हो गया। a वैल्यू आ गई 7/2, b आ गई 9/2, a तो b की वैल्यू निकालनी सी, हो गया सॉल्व, इट्स करेक्ट। a is 7/2, b is 9/2, आंसर आ गया तुहाडे को। इना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सानू क्या गया कि शो करना है कि इस फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की दे रखी है x अप्रोचेस टू 0 x² साइन ऑफ 1/x ओवर 10x, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਕੈਨੋਟ ਇਵੈਲੂਏਟਡ ਬਾय ਦ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਰੂਲ। ਅਸੀਂ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x² * ਸਾਈਨ ਆਫ 1/x, दूसरा फंक्शन है g(x), ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ tan x। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਰੂਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਜੋ x² ਸਾਈਨ 1/x ਹੈ ਉਹ 0 ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨॉट ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ 0, 0 ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਰੂਲ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 x²
साइन 1/x ओवर 10x। मैं की कर रही हाँ, इनू दोबारा लिख रही हाँ लेकिन रीअरेंज करके टर्म्स नू किस तरह रीअरेंज किया, एक x tan दे नाल ले लिया तो x ओवर 10x हो गया। जिहड़ा एक x बच्चा उन्होंने मैं डिनोमीनेटर च ले गई तो उन्होंने मैं लिख सकती हाँ साइन ऑफ 1/x इंटू x। ऐदा लिखना ऐदा लिख लो, नहीं तो 1/x भी लिख सकते हो। चलो ऐदा लिख लो, एक x tan दे नाल लिख लिया, एक अलग तो कर लिया। हुण इस टर्म की लिमिट कितनी होंदी है, अगर तुहानू पता होवे तो इस टर्म की लिमिट कितनी है, 0, दैट इज 0। x इंटू साइन ऑफ 1/x, क्योंकि यह एक बाउंडेड फंक्शन है, जो x 0 ते जाऊगा इन्हें ऑसीलेट करना है -1 तो 1 दे विचकार ऑसीलेट करेगा। इन्हें डायरेक्टली 0 ते ही चल जाना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय बाउंडेड फंक्शन इज 0। अगर तुसी लिमिट वाला चैप्टर टॉपिक नहीं पढ़िया तो उस लैक्चरस विच मैं समझाया होया कि ये किस तरह आई है 0 लिमिट, यह पूरा एक्सप्लेन किया होया है क्वेश्चन। x टाइम साइन 1/x की लिमिट 0 क्यों होंदी है, तो इस दी लिमिट की वैल्यू आ गई 0। हुण इनू देखो दोबारा, ए की है, ए वो आइडेंटिटी बन रही है tan x ओवर x, x ऊपर लिख दिता कोई गल नहीं, पर फिर भी बनते आइडेंटिटी रही है ना। इनू तुसी ऐंदा भी तो लिख सकते हो, tan x ओवर x नाल कौन है x टाइम साइन 1/x, एदी वैल्यू आ गई तुहाडे को 1, आइडेंटिटी तो 1 ओवर 1 हो गया। ए टर्म की है 0, 0 इंटू 1 इज 0, तो तुहाडे को लिमिट का आंसर की आ गया 0। जो फंक्शन दे रखिया सी x² साइन 1/x ओवर 10x, ओदी लिमिट एग्जिस्ट कर दी है, यस एग्जिस्ट कर दी पई है। फाइनाइटली एग्जिस्ट कर दी है, यस फाइनाइटली एग्जिस्ट कर दी है, एंड इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये कोई असी एल हॉपिटल रूल नहीं लगाया। दोबारा देखो एल हॉपिटल रूल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये डेरीवेटिव जो असी कीता वो एग्जिस्ट ही नहीं करिया। एल हॉपिटल रूल का एक पॉइंट है कि जो भी एल हॉपिटल रूल लगाना है वो कंडीशन है कि डेरीवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट के नेबरहुड च, बट इत्थे डेरीवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया, देयरफॉर वी कैन नॉट यूज एल हॉपिटल रूल, we can't use एल हॉपिटल रूल, बट असी विदाउट एल हॉपिटल रूल भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। क्लियर है ना, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इसे की करना है कि इवैल्यूएट करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 किदे ते 1 + x पावर 1/x माइनस e ओवर x। ਇਹਦੇ ਲਈ 1 + x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/x मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रही है, ਇਹਦੀ वैल्यू डायरेक्ट है e इंटू 1 - 1/2x एंड सो ऑन। इट्स दी वैल्यू नाल होर भी अलग टर्म्स आनियां, उत्थे x की ज़्यादा पावर है, बाकी की है -e ओवर x। जो तुसी e अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो की आ जाएगा e - e/2x प्लस सो ऑन, जिन्हां विच x दियां ज़्यादा टर्म आनियां, मतलब x की पावर ज़्यादा आ जाएगी, टर्म्स हैविंग हायर पावर ऑफ x, हायर पावर ऑफ x नाल कौन है बाहर -e, सारी टर्म किहदे नाल डिवाइड हो रही है x नाल, एंड नेगेटिव e तो पॉजिटिव e कट हो गया, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की बचिया -e/2 x प्लस टर्म्स ऑफ हायर पावर ऑफ x, हायर पावर ऑफ x, डिनोमिनेटर च कौन है x। अगर तुसी डिनोमिनेटर अलग अलग करो, ए वाले x नाल ए x इहदे नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा -e/2। जो ए वाली टर्म्स है इधर हायर टर्म्स है, x की पावर 1 नहीं है, इत्थे x की पावर 1 तो ज़्यादा है, तो एक टर्म ही कैंसिल होनी है, बाकी तावी x बच जाएगा इन्हां टर्म्स च। जो उत्थे x की वैल्यू इत्थे तावी टर्म्स है x दियां बच जानियां, टर्म्स ऑफ हैविंग पावर x, ठीक है। तो हुण की होएगा, इहदे च डायरेक्ट वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो, वैल्यू ही सबस्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगी -e/2, बाकी सारा 0,
ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਟਾਈਮਸ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੰਦਾ -1/2 ਟਾਈਮਸ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। 1 + x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/x ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਕਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ log ਲੈ ਲਿਆ, log ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 1 + x log ਦੀ 1 + x ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਹੀ 1 + x ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਤੀਆਂ 1 + x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਫਿਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ 1/x ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ x ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ log y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ 1 + t, 1 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ t, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ t ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ log y is 1 + t। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇਕੱਲੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ y = e ਪਾਵਰ 1 + t ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟਰਮਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ e ਦੀ ਪਾਵਰ 1 e ਦੀ ਪਾਵਰ t ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਤੇ e ਪਾਵਰ 1 ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦੋ, ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ e ਪਾਵਰ t, e ਪਾਵਰ t ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ e ਪਾਵਰ x ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल x पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इत्थे x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਕੌਣ ਹੈ t ਹੈ, x ਨੂੰ t ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ। ਹੁਣ t ਕੌਣ ਹੈ, t ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ, ਇਹ t² ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟਰਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਮਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕੱਲਾ x ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ x² ਹੈ ਉਹ 2 ਟਰਮਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ x³ ਹੈ ਉਹ 3 ਟਰਮਸ ਆਈਆਂ ਟੋਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਆਈ, ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ 1 + x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/x, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ e ਟਾਈਮਸ 1 - 1/2 ਟਾਈਮ x + 11/24 x ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਟਰਮਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਆ 2 ਟਰਮਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, e ਟਾਈਮਸ 1 - 1/2 ਟਾਈਮ x, ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ 3 ਹੈ 4 ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ x ਪਾਵਰ ਬਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, 0 ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਹੀ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਗਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੌਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣੇਗੀ 0/0, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग।